علیکم ناظرین، روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ کسی کا حق نہ مار بیٹھنا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی بالشت بھر زمین بھی دبا لی تو قیامت کے دن دبائی گئی زمین کے برابر 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ متحدہ ضلع میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق رسول کی جانب سے جوش و خروش کے ساتھ انعقاد، ذکر و سیرت کی محفلوں کا انعقاد، شہر کے مختلف چوراہوں پر لہرایا گیا سبز پرچم۔ عوام کی مدد کے لیے ایم ایل اے دفتر کی دروازے ہر وقت کھلے، رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا۔ انہوں نے استفادہ کنندگان میں 24 لاکھ مالیت کے CMRF چیکس کی تقسیم۔ اسمبلی ہال میں سابقہ وزیراعظم PV نرسمہا چاریلو کی تصویر کو ریاستی وزیر اعلیٰ KCR اور ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچورام سرینواس ریڈی کے ہاتھوں نقاب کشائی۔ پورے ملک میں تلنگانہ حکومت کی نظر نہیں، ہر طبقے کے لیے منفرد اسکیمات موجود، PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی کا اظہار خیال۔ پوٹی شری راما یونیورسٹی میں منعقدہ بدکمہ تقریب میں ریاستی گورنر تمل سائی و MLC کے کویتا نے کی شرکت۔ بودھن رکن اسمبلی شکیل عامر کی متحدہ ضلع MLC کے کویتا سے ملاقات و دی تہوار کی مبارکباد۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ رحمت و برکتوں کا مہینہ ربیع الاول، جس ماہ میں آمد رحمت دو عالم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اس ماہ کی خصوصیات پر روشن ٹی وی کی خصوصی رپورٹ۔ ماہ ربیع الاول کی آمد ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کو اس ماہ میں تجدید عہد کرنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں گے۔ اس حقیقت میں شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی مسلمانوں کی قوت اور شان و شوکت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اسی وابستگی کے سبب وہ قرآن حکیم کی حیات بخش تعلیمات کو عرض جان بناتے ہیں، اور اسی وابستگی کے سبب وہ زندگی کے ہر چیلنج کا مقابلہ بڑے صبر و استقامت سے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہی والہانہ وابستگی انہیں اتحاد کی لڑی میں پروتی ہے، اور اسی میں ان کی قوت اور شان و شوکت کا راز مضمر ہے۔ دنیا میں ایسی قوموں کی کمی نہیں جن کو اسلام کی دشمنی ورثے میں ملی ہے۔ ان قوموں نے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی وابستگی کے سبب ان کی ہر کوشش ناکام ہوئی۔ اس ماہ میں یہ وابستگی اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ ماہ ربیع الاول کو تاریخ اسلام میں کئی ایک خصوصیات کی وجہ سے امتیازی مقام حاصل ہے۔ سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی ماہ میں ہوئی۔ اسی ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل کی گئی، جبکہ آپ غار حرا میں مصروف عبادت تھے۔ اسی ماہ مبارک میں ہجرت کا انقلاب آفری واقعہ پیش آیا، اور اسی ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ ماہ ربیع الاول میں میلاد پاک اور سیرت طیبہ کے حوالے سے بے شمار جلسے، سیمینار، سمپوزیم اور محفل منعقد کرتے ہیں، جس سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، آپ کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت و عقیدت پیدا کی جائے، اور آپ کی سیرت طیبہ بیان کی جا کر مسلمانوں میں اخلاق و کردار کو سدھارا جائے اور شریعت پر عمل کرنے کی ترغیب دی جائے۔
شریعت میں یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز خیر کا ذریعہ ہوتی ہے وہ بھی خیر ہوتی ہے۔ اس طرح مسلمانوں کا میلاد پاک کی محفلیں منعقد کرنا، جلسے، سیمینار اور سمپوزیم کا انعقاد کرنا، نعتیہ مشاعروں کا اہتمام کرنا وغیرہ خیر کا ذریعہ ہے اور خیر کی ترویج کا ایک حصہ ہے۔ ان چیزوں سے عقیدت میں اضافہ ہو رہا ہے، شرعی احکام اور صفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقفیت حاصل ہو رہی ہے اور عقائد و اعمال کی اصلاح ہو رہی ہے۔ اسی لیے علماء اس کی تائید بھی کرتے ہیں، ترغیب بھی دیتے ہیں اور عملی طور پر خود اس کا اہتمام و انتظام بھی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں مسلمان اپنی عقیدت و محبت کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ کوئی غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، کوئی پیسے تقسیم کرتا ہے، کوئی جلسے منعقد کرتا ہے جس سے جو ہو سکے وہ کام انجام دیتا ہے اور اس کی تمنا ہوتی ہے کہ یہ اعمال اللہ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبول ہو جائے اور اس کی مغفرت اور رفع درجات کا باعث بنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عرب میں اس سے پہلے کبھی اس طرح کا نام نہیں رکھا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی وہ ذات جس کی خوب تعریف و توصیف کی گئی اور کی جاتی رہے گی۔ خدا تعالیٰ جو خالق و مالک ہے، اس نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ مخلوق اگر کسی کی تعریف کرتی ہے تو وہ ختم ہو سکتی ہے، لیکن خالق کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ خالق کی تعریف کو زوال نہیں آ سکتا۔ جس کی تعریف خالق بیان کرے، اس کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کمال کے بارے میں شاعر دربار رسالت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہتے تھے ویسا پیدا کیے گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روبرو اشعار سنائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا تو یہ اشعار حدیث بن گئے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت اور عالمین کے لیے رحمت ہے، اسی لیے موجودہ حالات میں میلاد کی خوشیاں اس طرح منائی جا سکتی ہے کہ ہم ضرورت مندوں کی دل کھول کر مدد کریں۔ ان حالات میں بلا لحاظ مذہب و ملت انسانیت کی مدد کرنا ہی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا ہے۔ مال کو غریبوں کی بھلائی کے لیے خرچ کرنے اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے مالدار کے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ ساز و سامان اور مال و دولت رکھنے کے باوجود تنگی کا شکار ہو گئے ہیں یا کسی زمینی یا آسمانی حادثے کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی اور کار خیر ہے۔ سخاوت اہل جنت کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سخاوت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے برخلاف نجل و کنجوسی کو اسلام سخت ناپسند کرتا ہے۔ مسائل و مشکلات میں ہمیں اپنے ایمان اور اپنی جان کی حفاظت کے سلسلے میں غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ شریعت صبر، ہمت اور استقامت سے کام لینے کی تاکید کرتی ہے۔ ماہ ربیع الاول کے آغاز پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خوشی کی لہر، شہر میں سیرت پاک و ذکر کی محفلوں کا آغاز، وہ شہر کے اہم چوراہوں پر کی گئی سبز پرچم کی پرچم کشائی۔ ماہ ربیع الاول کے چاند نظر آنے پر عاشقان رسول میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور اس ماہ مبارک کے آغاز کے اعلان کے ساتھ ہی آج شہر کے مرکزی چوراہے، نہرو پارک، نگرام، احمدی بازار و مختلف چوراہوں پر اہل سنت الجماعت کی مختلف تنظیموں کی جانب سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سبز پرچم کشائی کرتے ہوئے فاتحہ خوانی و ذکر کی محفلوں کا آغاز عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر وبائی امراض و کورونا سے نجات کے لیے شہر کے علماء کرام نے دعائیں کی۔ واضح رہے کہ شہر میں 15 روزہ جلسے میلاد النبی کا ہر روز شہر کے مختلف علاقوں میں انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اسی طرح 19 اکتوبر کی حسب روایت جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز عمل میں لائے جانے کا ذمہ داران نے اظہار کیا۔ اس موقع پر مولانا کریم الدین کمال صاحب، مولانا ایوب رضا، مولانا مستان رضوی، نواز رضا و دیگر موجود تھے۔ میں آئے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا،
रसूल कायनात सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़मतों का परचम और आपके इसमें गिरामी का परचम अर्श पर लहरा रहा है। इसीलिए सरकार की विलादत मुबारका के महीने के आगाज़ के साथ ही परचम कुशाई का आगाज़ हो जाता है। जगह जगह सरकार के नाम का परचम लहराया जाता है। निज़ामाबाद शहर में भी मुतअद्दिद जगह सरकार के नाम का परचम लहराया जाता है। जिनका परचम अर्श में लहरा रहा हो, अर्श पर लहरा रहा हो, उनका परचम अगर ज़मीन पर लहराने की हम सआदत हासिल करें तो इससे बढ़कर खुशनसीबी और क्या हो सकती है। और यही खुशियाँ तमाम मुसलमानों के जहन में हैं, दिलों में हैं। इसीलिए पूरे अक़ीदत व मोहब्बत के साथ किसी न किसी ज़रिए से अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार किया जाता है और उसी सिलसिले में ये परचम कुशाई की गई। अवाम की मदद के लिए हर वक्त एमएलए कैंप दफ्तर के दरवाजे खुले। सीएमआरएफ रिलीफ फंड गुरबा के इलाज का सहारा। रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता, इन्होंने 24 लाख मालियत के सीएमआरएफ रिलीफ फंड के चेक्स की इस्तिफादा कुनैनगान में तकसीम अमल में लाई। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने कैंप ऑफिस पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा 31 सीएमआरएफ चेक्स की मुस्तहकीन में तकसीम अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तिदार में सीएम केसीआर की जानिब से सतह गुरबा से ताल्लुक रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज व मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से सीएमआरएफ चेक्स की फराहमी अमल में लाने का इजहार करते हुए कहा कि शहर के अवाम नासाज तबीयत के बाइस मुख्तलिफ खानगी हॉस्पिटल में इलाज करदा तिब्बी इमदाद के मुतालिक बिल के जरिए एमएलए कैंप दफ्तर में दरख्वास्त दाखिल करने की सूरत में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मदद फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में शहर के मियां नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, टीआरएस कॉर्पोरेट कायदीन व दीगर ने शिरकत की। सीएमआरएफ కింద 24 లక్షల నగదును అందజేయడం జరిగింది। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి సహాయ నిధితో ఇది సాధ్యపడింది। నిజామాబాద్కు వచ్చిన దాదాపు ప్రతిసారి మేము सीएमआरएफ కింద ఎవరైతే అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేరిండ్రో ఆ బిల్లులు మా ఆఫీస్కి తీసుకొని వచ్చినప్పుడు మేము దాన్ని హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయంలో సబ్మిట్ చేసి ఈ చెక్లను ప్రాసెస్ చేపించి మేము ఇస్తా ఉన్నాం। మన ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను ఈ లబ్ధిదారులందరి తరపున నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నా। నగరంలో ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉన్నా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు ఉన్నప్పుడు కూడా मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता ने रियासती गवर्नर तमिली साई सौंदरराजन के हमरा फूलों के त्यौहार बदकमा तकारीब में की शिरकत। मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता ने रियासती गवर्नर सौंदरराजन के हमरा फूलों के त्यौहार बदकमा तकारीब में शिरकत करते हुए खुशी का इजहार किया। वह इस मौके पर के कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति के साथ दीगर तंजीमों की जानिब से बदकमा त्यौहार से मुताल्लिक कदीम गीतों को हासिल करते हुए इसे नए तरह से मनाया जा रहा है, जो कि अवाम में ज्यादा मकबूल होने का इजहार करते हुए कहा कि सदियों से चली आ रही बदकमा तकारीब में हर साल की तरह इस साल भी खवातीन की भारी तादाद शिरकत करते हुए बदकमा त्यौहार को जोश खरोश के साथ मनाने का इंकशाफ किया। ప్రారంభమై దాదాపు ఇది మూడో రోజు ఈ సంవత్సరం ఈ మూడో రోజు సంబరాలు తెలుగు యూనివర్సిటీలో గవర్నర్ మేడం గారితో కలిపి జరుపుకోవడం అన్నది చాలా సంతోషంగా ఉంది। తెలుగు యూనివర్సిటీ చాలా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందైనా ఏర్పడిన తర్వాత అయినా చక్కటి పని చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నది। ఈ సందర్భంలో ప్రత్యేకించి బతుకమ్మ సందర్భంగా కలిసాం కాబట్టి బతుకమ్మ పాటలలో ఉండేటటువంటి తెలుగు పదాల మీద పరిశోధన చేసినట్టయితే తప్పకుండా తెలుగు భాష మరింత పరిపుష్టమవుతుందని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను। ఎందుకంటే బతుకమ్మ పండుగ అనేది అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటి పండుగ అని మనం చెప్పుకుంటాం। ఈ పాటలు ఏవైతే సేకరించి అనేక సంస్థలు ఒక పక్క జాగృతి సేకరిస్తున్నది, అదేవిధంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి అనేక సంస్థలు కూడా బతుకమ్మ పాటలు పాతవి సేకరిస్తాం। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर करदा 30 कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक्स की बालकोंडा मंडल सदर बदम प्रवीण रेड्डी के हाथों इस्तीफादा कुनैनगान में फराहमी अमल में लाई गई। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 6 मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन को मंजूर करदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक्स की एमपीपी लावनिया लिंगा गौड, तहसीलदार प्रवीण कुमार और मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी के हाथों इस्तीफादा कुनैनगान में 30 चेकों की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गरीब व मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के लिए
रकमी इमदाद 25,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए किया और माँ बाप 1,01,16 रुपए सरकारी इमदाद देते हुए वालिदैन को राहत पहुंचाने का मिसाली इक़दाम करने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तेफादा कुननगार ने रियासती वज़ीर आला कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव और रियासती वज़ीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में हल्के समन्वय कमेटी मेंबरान दासरी वेंकटेश, वाइस एमपीपी श्रीकांत यादव, एमपीटीसी मेंबरान ईपी नारायणा, रामराज गौड़, मंडल कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद फयाज अली, नायब सरपंच शेख वाहब, ई महपाल, चंदू श्रीनिवास गौड़ व दीगर ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से 2,91,000 डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाने की बिना पर 1,73,000 मकानात की तामीर मुकम्मल करने का रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने जारी असम्बली इजलास में किया इजहार। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने जारी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से 2,91,000 डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाई गई, जिसमें से 1,73,000 मकानात की तामीर मुकम्मल हो गई है और 53,000 डबल बेडरूम मकानात ज़ेरे तामीर होने का इजहार करते हुए बताया कि इन मकानात की तामीर के लिए अब तक 10,442 करोड़ रुपए के अखराजात बर्दाश्त करने का इजहार किया। సభ్యులు నవీన్ కుమార్ గారు మాట్లాడుతూ ఎన్ని ఇళ్ళు మంజూరు చేసుకున్నారు, ఎంత డబ్బు ఖర్చు అయింది, మరి ఆ డబ్బు ఖర్చు అయిన దాంట్లో కేంద్రం ఎంత ఇస్తుంది, తదితర విషయాలు అడిగారు అధ్యక్ష. చాలా మంచి క్వశ్చన్ అధ్యక్ష. ఎందుకంటే బయట చాలామంది చాలా రకాలుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. 2 బెడ్రూమ్ ఇళ్ళు అన్నీ మొత్తం కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వమే డబ్బులు పంపిస్తున్నది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కడతలేదు, అట్లా చాలా విపరీతమైన దుష్ప్రచారాలు చేస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఇది మంచి క్వశ్చన్. నేను ఈ వేదికగా చాలా క్లారిటీగా చెప్తా అధ్యక్ష, ఈ వేదికగా నేను ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు దయచేసి గమనించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. మొత్తం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 2,91,000 ఇండ్లు 2 బెడ్రూమ్ ఇళ్ళు మంజూరు చేసిరు అధ్యక్ష. అది దాదాపు 18,000 కోట్లు దాని ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్. అయితే దాంట్లో నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన ప్రాబ్లం స్థలాలు దొరకక కొన్ని స్టార్ట్ కాలేకపోయినాయి. 2,27,000 ఇండ్లు మొదలుపెట్టినాం అధ్యక్ష. 2,27,000 ఇండ్లు. ఇక్కడ ఇంకొక మాట కూడా అధ్యక్ష, ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి ఈ ఇల్లు ఇంతకుముందు ప్రభుత్వాలు తీసుకున్న ఇండ్ల కంటే 6 రెట్లు ఎక్కువ అధ్యక్ష. అది డబ్బు విషయంలో కావచ్చు, ఏరియా విషయంలో కావచ్చు. అంటే ఇప్పుడు కేసీఆర్ కడుతున్న ఒక ఇల్లు గత ప్రభుత్వాలు తీసుకున్న ఇళ్ళకు 6 ఇళ్ళకు సమానం అధ్యక్ష. అంటే మేము ఇప్పుడు 2,27,000 ఇండ్లు తీసుకున్నాము అని అంటే గత ప్రభుత్వాల లెక్కలో తీసుకుంటే 14 లక్షల ఇండ్లు కట్టినట్టు అధ్యక్ష. दशहरा त्यौहार के पेश नजर तातीलात गुजारने के लिए दूसरे मुकाम को जाने वाले अफराद यकीनी तौर पर किसी करीबी पुलिस स्टेशन में इत्तला देने की दी हिदायत। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय का सहाफती बयान। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने सहाफती बयान में बताया कि दशहरा त्यौहार के पेश नज़र जिले में मुकीम अफराद दूसरे मुकाम का रुख करने पर महकमे पुलिस की जानिब से आयद करदा उसूलों पर अमलावरी करने की हिदायत देते हुए कहा कि सुबह के अव्वलीन सातों रुई पेपर, फूलों की कुंडी वो हर एक माल व अशिया फरोख्त करने वालों पर कड़ी नजर रखते हुए रात के औकात कार में मशकूक हालात में नजर आने वाले अफराद से चौकन्ना रहे और दूर दराज मुकामात को जाने वाले अफराद किसी करीबी स्टेशन पर इत्तला दे, क्योंकि सारिकों की जानिब से मुखफल किए हुए मकानात की शिनाख्त करते हुए रात के औकात कार में सरखे की वारदात अंजाम दी जा रही है। मुकामी अफराद की जानिब से गश्ती टीम का क़याम अमल में लाते हुए चोरी के वाक़यात को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इन्होंने मजीद कहा कि मशकूक हालात में नजर आने वाले अफराद के मुतालिक करीबी पुलिस स्टेशन या डायल नंबर 100 पर कॉल करके इत्तला फराहम करने का इंकशाफ किया। बांसवाड़ा मंडल से कबड्डी टीम की गोवा रवानगी। बांसवाड़ा मंडल से कबड्डी टीम की गोवा रवानगी बांसवाड़ा जयशंकर मिनी स्टेडियम में तकरीबन 1 माह से मुकम्मल ट्रेनिंग के बाद स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी और डीसीसीबी चेयरमैन भास्कर रेड्डी की जानिब से नकद 75,000 रुपए के ताउन से बांसवाड़ा मंडल की कबड्डी टीम को स्पीकर पोचराम की क़यामगाह से हैदराबाद से गोवा के लिए रवानगी का इंतजाम किया गया। इस मौके पर जिले रायतु बंधु सदर अंजू रेड्डी, बल्दिया चेयरमैन गंगाधर, सोसाइटी चेयरमैन कृष्णा रेड्डी, मोहम्मद एजाजुद्दीन ने कबड्डी टीम को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और टीम को रवाना कर दिया। గుడ్ మార్నింగ్ సార్, పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి సార్ గారికి మరియు భాస్కర్ రెడ్డి సార్ గారికి మా యొక్క ధన్యవాదాలు సార్. మేము ఈరోజు గోవా వెళ్తున్నాం సార్. నేషనల్
గేమ్ కబడ్డీ ఆడడానికి మీలాంటి పెద్దవాళ్ళు మాకు సహకరించినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ సార్. ఎందుకంటే మీ యొక్క సహకారంతో మేము ఇంతవరకు వెళ్తున్నాం సార్. మీలాంటి పెద్దవాళ్ళు ఇంకా మాకు ఇంత సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే మేము ఇంకా ముందుకు వెళ్తాం సార్. మన జిల్లాకు మన మండలికి మంచి పేరు తీసుకొస్తాం సార్. మీ దయ వల్ల మేము గోవా వరకు అంటే నేషనల్ వరకు ఆడుతున్నాం సార్. జై తెలంగాణ. కామారెడ్డి జిల్లా నుంచి అండర్-19 HGDT గోవాలో జరుగుతున్నటువంటి కబడ్డీ పోటీల్లో మరి కామారెడ్డికి సంబంధించినటువంటి క్రీడాకారులు మరి కబడ్డీ ఆడడానికి బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ వాళ్ళు ఈరోజు బాన్సువాడ పట్టణం నుంచి అక్కడ 10వ తారీఖు నుంచి జరగబోయేటువంటి కబడ్డీ పోటీల్లో పాల్గొనడానికి ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరి హైదరాబాద్ నుంచి గోవా వెళ్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకు గాను ప్రోత్సహించడానికి కొరకు మన గౌరవ NDCC బ్యాంక్ అధ్యక్షులు పోచారం భాస్కర్ రెడ్డి గారు వారికి 75,000 రూపాయలు మరి వారికి नंदीपेट मंडल कमलापुर ग्राम पंचायत दफ्तर में मुकामी सरपंच गद्दा सुरावा के हाथों खवातीन में बदकमा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। नवीपेट मंडल कमलापुर ग्राम पंचायत दफ्तर में मुकामी सरपंच गड्ढा सूरावा के जेर निगरानी में नायब सरपंच रमेश रेड्डी ने MPTC जनार्दन, TRS पार्टी मंडल सदर नागेश्वर राव, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दोनता प्रवीण व मौजे के सदर मल्लेश के हमरा खवातीन में बदकमा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर TRS पार्टी मंडल सदर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से बदकमा त्यौहार के मौके पर 18 साल मुकम्मल करने वाली खवातीन को बदकमा साड़ियों की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर व कानून साज कौंसिल के रुकन की कविता के अहकामात के मुताबिक मंडल से मुंसलिक तमाम मौजूआत के खवातीन में बदकमा साड़ियों की तकसीम अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में पंचायत सेक्रेटरी प्रमीला, वार्ड मेंबरान, सीनियर कायदीन पोशेट्टी, बाबू, कोटी रेड्डी, लक्ष्मण, राजा लक्ष्मी, नरसैया, वेंकट राम रेड्डी, नागी रेड्डी, लक्ष्मी देवी व दीगर ने शिरकत की। भीमगल मंडल महकमे देहात में CM KCR और रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को बारिश के पानी से महफूज करने के लिए कवर शेड की तामीर अमल में लाने का MPP आर्मर महज ने किया इजहार। भीमगल मंडल मचकोर देहात में चीफ मिनिस्टर KCR और रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब किसानों के लिए 21,69,000 मालियाती रकम से कवर शीट का संग बुनियाद रखने का MPP आलमुर महज ने इजहार करते हुए कहा कि किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार बारिश के पानी से महफूज करने के लिए कवर शीट की तामीर अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में MPP आलमुर महज, ZPDC चोटपल्ली रवि, TRS पार्टी मंडल सदर दोन कंटी नरसैया, ZP कॉप्शन MA मोइज, रायतु बंधु सदर शर्मा नायक, हल्के सामान्य कमेटी मेंबरान गुन्नावी रेड्डी, भीमगल सोसाइटी चेयरमैन शिवासारी नरसैया व दीगर मौजूआत के सरपंच, MPDC व TRS पार्टी कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। एक नजर वक्फे की ओर। సింత్ షాపింగ్ మాల్ ఫెస్టివల్ కలెక్షన్స్ తో మీ ముందుకు వచ్చింది సింత్ షాపింగ్ మాల్. ఈ దసరా దీపావళి పండుగలకు మరింత శోభను చేకూర్చేవి మా వస్త్రాలు. కళ్ళు చెదిరే వైభోగాలు, ఎనలేని వస్త్ర సంపదలు, నీ మనసిక స్వర్గం స్వర్గం. అతివలకు పట్టు చీరలు, అందమైన చుడిదారులు, మగవారికి మెన్స్ వేర్, చిన్నారుల కిడ్స్ వేర్, నాణ్యతకు మన్నికకు చిరునామా సింత్ షాపింగ్ మాల్ 50% స్పెషల్ డిస్కౌంట్ సేల్. అందరం కోరుకునే సింత్ షాపింగ్ మాల్ ఇక అతిపెద్ద ఫెస్టివ్ సేల్ కి రెడీ. మీరు రెడీయేనా? అయితే విచ్చేయండి సింత్ షాపింగ్ మాల్, గాంధీ చౌక్, నిజామాబాద్. ఫోన్ 08462222590. निजामाबाद अर्बन में घरेलू पकवान गैस सिलेंडर 1005 रुपए, पेट्रोल 108, डीजल 101 रुपए लीटर। अवाम के माली बोझ में हर माह इजाफा। घरेलू पकवान गैस की कीमत में बेतहाशा इजाफा है। आज से 975.50 रुपये अदा करने पर गैस हासिल की जा सकती है।
डोर डिलीवरी पर 1005 रुपये में पकवान गैस सिलेंडर सरबराह किया जा रहा है। निजामाबाद शहर और जिले में घरेलू पकवान गैस सिलेंडर का कमर्शियल मुकामात पर गैर मजाज कारोबार उरूज पर है। सब्सिडी गैस सिलेंडर को हासिल करते हुए तिजारती मराकज, होटल, फास्ट फूड सेंटर पर खुलेआम इस्तेमाल किए जाने के बावजूद महकमे अवामी सरबराह के अहदेदार खामोशी तमाशाई बने हुए हैं। निजामाबाद शहर के बमशमूल आरमूर, बोधन जैसे शहरों में भी होटल, फास्ट फूड सेंटर्स, टिफिन सेंटर्स में घरेलू पकवान गैस सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं। घरेलू सारिफिन को पकवान गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन तिजारती मुकामात पर पकवान गैस सिलेंडर बआसानी दस्तयाब हो रहे हैं। अफसोसनाक तौर पर महकमे अवामी सरबराही के अहदेदार कुछ अरसे से माना खैस खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तिजारती मुकामात पर घरेलू पकवान गैस सिलेंडर के इस्तेमाल के खिलाफ ना ही तनखी की जा रही है और ना ही कोई कार्रवाई, जिसके बाइस पकवान गैस सिलेंडर का गैर मजाज इस्तेमाल करने वाले अनासिर के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इसी तरह पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के बाइस तमाम जरूरी अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है। आज शहर में पेट्रोल 108 रुपये फी लीटर और डीजल 101 रुपये फी लीटर दस्तयाब है। अवाम का मुतालबा है कि पेट्रोल पंप पर महकमे ओजान पैमाइश के अहदेदार अचानक धावा करते हुए मुआयना करें। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की जाने वाली चोरी से हर कोई वाकिफ नहीं होता है, इसीलिए ओजोन व पैमाइश अहदेदारों को सार्फिन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्हें बाशऊर बनाने के अलावा पेट्रोल पंप जिस इलाके में आता है इस इलाके के अहदेदारों के मोबाइल नंबर को पेट्रोल पंप पर बोर्ड आवेजा करते हुए लगाना चाहिए, ताकि पेट्रोल और डीजल कम आने पर शहरी अहदेदारों से रब्त पैदा करते हुए कार्रवाई को यकीनी बना सके। बास ऑटो ड्राइवर्स का कहना है कि जब से बोतलों पर पेट्रोल डालने से इम्तना आयद किया गया, तब से इस बात का अंदाजा भी लगाना मुश्किल हो चुका है जिस पेट्रोल पंप पर कितनी चोरी की जा रही है, क्योंकि बोतल में पेट्रोल डालने से इस बात का पता चल जाता था कि पेट्रोल कम है या बराबर दिया गया है। साबिका में शहर के बास पेट्रोल पंप पर पेट्रोल कम दिए जाने पर झगड़े के वाकयात पेश आ चुके हैं। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की चोरी आम बात है और पेट्रोल पंप मालिकीन की जानिब से की जाने वाली इस धांधली को रोकने के लिए महकमे ओजोन व पैमाइश अहदेदारों की जानिब से अक्सर व बेशतर धावे किए जाने जरूरी है। अचानक धावे करने से ऐसे पेट्रोल पंप की निशानदेही होती है जहाँ पेट्रोल की चोरी की जाती है। गुज़िश्ता कई माह से किसी पेट्रोल पंप का अहदेदारों की जानिब से मुआयना करने की इत्तला सामने न आने से अवाम में तशवीश का इजहार किया जा रहा है। बांसवाड़ा मजलिस बल्दी के चेयरमैन गंगाधर व रायतू बंधु जिले सदर अंजी रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फ्राहम करदा बदकमा साड़ियों की खवातीन में फ्राहमी अमल में लाई। बांसवाड़ा मजलिस बल्दी के चेयरमैन गंगाधर व रायतू बंधु सदर अंजी रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फ्राहम करदा बदकमा साड़ियों की खवातीन में तकसीम अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात के तहत फायदा पहुँचाते हुए बदकमा त्यौहार के मौके पर खवातीन की खुशियों को दोबारा करने के मकसद के तहत बदकमा साड़ियों की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कोऑपरेटिव सोसाइटी सदर कृष्णा रेड्डी, रायतू बंधु जिले सदर अंजी रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने असम्बली के अहाते में हिंदुस्तान की साबिक़ा वज़ीर आज़म और तेलंगाना के सुपुत्र अंजानी पीवी नरसिम्हा राव की तस्वीर की रस्म इजराई अमल में लाई। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर केसीआर की मौजूदगी में असम्बली के अहाते में हिंदुस्तान के साबिक़ा वज़ीर आज़म तेलंगाना के सपुत्र अंजानी पीवी नरसिम्हा राव की तस्वीर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में कानून साज काउंसिल प्रोटीम चेयरमैन भूपाल रेड्डी, डिप्टी स्पीकर टी पद्मा राव गौड, कानून साज उमूर वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी, लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी डॉक्टर वी नरसिम्हाचार्यलू व दीगर ने शिरकत की। शहर के शॉपिंग मॉल से एक 3 साला लड़की अस्किया लापता, मामला गुमशुदगी या अगवा का अभी तशवीश, अवाम से मदद की अपील। त्यौहार व शादी तकारीब के सबब शहर के शॉपिंग मॉल्स में अवाम के हुजूम में बेतहाशा इजाफा हो गया है। ऐसे हालात में जरा सी चूक भी काफी भारी पड़ सकती है। ऐसा ही एक वाक़या शहर की शॉपिंग मॉल में पेश आया, जहां पर मेटपल्ली से आए हुए गुलाम एहसानुद्दीन खान अपने अफराद खानदान के साथ खरीदी के लिए आए थे, लेकिन आज दोपहर तकरीबन 2 बजे इनकी 3 साला लड़की अस्किया हानी ना मिलने के सबब इन्होंने शॉपिंग मॉल के सीसीटीवी का जायजा लिया, जिस पर ये लड़की कोई और खवातीन के हमरा जा रही है, जिस पर इन्होंने महकमे पुलिस से राब्ता करते हुए मदद की अपील की और इत्तला मिलने पर 9951
51743826 और 8639891398 नंबर पर राब्ता करने की अपील की। तेलंगाना रियासत की फलाही स्कीमात के कहीं और नजर नहीं मिलने का पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने जारी असेंबली इजलास में किया इजहार। आर्मूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने जारी असेंबली इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में रियासत तेलंगाना में जो फलाही स्कीमात रूबे अमल में लाए हैं वो मुल्क की किसी दूसरी रियासत में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। वज़ीर आला रियासत के तमाम बाशिंदों के साथ मसावी मामला करने के अलावा रियासत के तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद को मद्देनजर रखते हुए काम करने का इजहार किया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा ज़िले में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक़ रसूल की जानिब से जोश खरोश के साथ इनेकाद, ज़िक्र व सीरत की महफिलों का इनेकाद। शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर लहराया गया सब्ज़ परचम। अवाम की मदद के लिए एमएलए दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले। रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता इन्होंने इस्तीफादा कुनंदगान में 24 लाख मालियत के सीएमआरएफ चेक्स की तकसीम। असेंबली हॉल में साबिक़ा वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा चारिलू की तस्वीर को रियासती वज़ीर आला केसीआर और रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों नकाब कुशाई। पूरे मुल्क में तेलंगाना हुकूमत की नज़ीर नहीं, हर तबके के लिए मुनफरिद स्कीमात मौजूद। पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का इजहार ख्याल। पोटी श्री रामा यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा बदकमा तकरीब में रियासती गवर्नर तमिलसाई व एमएलसी के कविता ने की शिरकत। बोधन रुकन असेंबली शेखिल आमिर की मुत्तहदा जिले एमएलसी के कविता से मुलाकात व दी त्यौहार की मुबारकबाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।